یہ واقعہ ہمارے ساتھ ان دنوں پیش آیا جب میں 10ویں کلاس کی طالبہ تھی۔ میرے بابا ایک فارسٹ آفیسر تھے۔ جس گھر میں ہم رہائش پذیر تھے وہاں ہمیں شفٹ ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا جس کے اطراف میں موجود جنگل اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتا تھا۔ بابا کی جانب سے باہر جانے پر سخت پابندی آئی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ یہاں جنگلی جانور بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں، اس لیے باہر جانا خطرے سے خالی نہیں۔ ویکینڈ پر وہ ہمیں خود ہی جیپ میں بٹھا کر جنگل کی سیر کرانے لے گئے۔ میں اور میرا بھائی اتنے دنوں کے بعد گھر سے نکلنے کی وجہ سے بے حد خوش تھے۔ ہم بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے۔ راستے میں اکثر جگہ ہمیں نو گو ایریا کے بورڈ لگے ہوئے نظر آئے۔ جنگل بہت گھنا تھا، لمبے قداور درخت جیسے بائیں پھیلائے کھڑے تھے۔ بعض جگہ تو سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچ پا رہی تھی، اسی لیے وہاں اندھیرا محسوس ہو رہا تھا۔ جس وقت ہم گھر واپس پہنچے تو شام ہونے والی تھی۔ کچن سے ماما کی کسی سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں کچن میں گئی تو دیکھا ایک درمیانی عمر کی چھوٹے قد والی عورت برتن دھونے میں مصروف تھی۔ ماما نے بتایا کہ یہ ہماری نئی ہیلپر ہے، نیچے قصبے سے آئی ہے۔ بابا نے کسی کو کہہ رکھا تھا کہ ہمیں کل وقتی ہیلپر کی ضرورت ہے، اب یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ کھانا بنانا ماما کی ذمہ داری تھا کیونکہ ان کے ہاتھ میں بے پناہ لذت تھی اور ہمیں ان کے علاوہ کسی کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں تھا۔ مایا کو ہمارے ساتھ رہتے ہوئے تقریباً 1 ماہ سے زائد عرصہ گزر چکا تھا۔ وہ بہت کم گو عورت تھی اور اپنے کام کو نہایت سلیقہ مندی سے نمٹاتی تھی۔ وہ بہت پھرتیلی بھی تھی، گھنٹوں کا کام منٹوں میں کر دیا کرتی تھی، بھاری بھرکم چیزیں بھی آسانی سے اٹھاتی تھی۔ پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگ بہت سخت جان ہوتے ہیں، یہ بات مایا کو کام کرتے دیکھ کر بالکل درست ثابت ہوتی تھی۔ میں ایگزامز کے بعد بالکل فری تھی اور ٹائم پاس کرنے کے لیے اکثر سسپینس اور جاسوسی ناولز پڑھا کرتی تھی۔ اس وقت بھی میں ناول پڑھنے میں مصروف تھی کہ اچانک ہی لائٹ چلی گئی۔ اس جگہ کی سب سے بری بات بار بار لائٹ کا چلے جانا تھا۔ میں نے ٹارچ لائٹ آن کر دی اور کھڑکی کے پردے ہٹا کر باہر جھانکنے لگی۔ باہر جنگل خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ تبھی مجھے لوہے کے گیٹ کھولنے کی آواز سنائی دی۔ اس وقت کون باہر جا رہا تھا؟ میں تھوڑا سا جھک کر دیکھنے لگی۔ ہمارے گھر کے چاروں طرف جنگلی جانوروں سے بچنے کے لیے لوہے کے بڑے بڑے جنگلے لگے ہوئے تھے۔ رات کو چوکیدار مین گیٹ پر تالا لگا دیا کرتا تھا۔ چوکیدار باہر موجود نہیں تھا، شاید وہ اپنے کیبن میں چلا گیا تھا۔ چاند کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ تبھی مجھے ایک سایہ حرکت کرتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے غور سے دیکھا تو مایا مجھے سامنے جنگل کے راستے کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کے ہاتھ میں کپڑے کی ایک پوٹلی تھی اور وہ تیز تیز قدموں سے چل رہی تھی۔ اچانک ہی چلتے چلتے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کو دیکھ کر میرے منہ سے زور کی چیخ نکلی۔ خوف کے مارے میرا برا حال ہو گیا۔ مایا کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں لال سرخ تھی جیسے ان سے خون ٹپک رہا ہو۔ میں نے جلدی سے کھڑکی بند کی اور بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ جو میں نے ابھی دیکھا وہ کیا تھا؟ مایا اس وقت وہاں کیا کر رہی تھی؟ مختلف ناولز میں پڑھے جانے والے سین میری آنکھوں کے آگے چل پڑے۔ لائٹ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ میں کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی مجھے کمرے کے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی میرے دروازے کے باہر موجود ہو۔ میں خوف میں مبتلا ہو گئی۔ وہ ساری رات میں نے جاگ کر گزاری۔ صبح میں دیر سے بیدار ہوئی۔ ناشتہ کرنے کے لیے جب میں کچن میں گئی تو مایا پر نظر پڑتے ہی مجھے رات والا واقعہ یاد آ گیا۔ میں جلدی سے سٹنگ روم میں آ کر بیٹھ گئی۔ مایا نے مجھے وہی ناشتہ لا کر دیا۔ میرے سامنے ٹیبل پر ناشتہ رکھتے ہوئے وہ مسلسل مجھے ہی گھورے جا رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ماما کو رات والے واقعے کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گی۔ دوپہر کو کھانے کے بعد جب ماما کمرے میں آرام کرنے کی غرض سے گئی تو میں نے انہیں سارا واقعہ سنایا۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگی۔ انہیں میری بات پر یقین نہیں تھا۔ انہوں نے سارا الزام میری ناولز پر ڈال دیا کہ ناولز پڑھ پڑھ کر میرے دماغ پر اثر ہو گیا ہے جو میں ایسی باتیں کر رہی ہوں۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ رات کو جو جنگل خوفناک محسوس ہو رہا تھا دن کی روشنی میں بے حد اچھا لگ رہا تھا۔ سبزہ ہر جانب پھیلا ہوا تھا۔ تبھی مایا میرے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ وہ میرے لیے چائے لائی تھی۔ میں نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی اور باہر دیکھتی رہی۔ لگتا ہے جنگل سے بہت لگاؤ ہے آپ کو۔ اس کی آواز پر میں نے مڑ کر دیکھا۔
वो मेरे ही पीछे खड़ी थी। मुझे बेतहाशा गुस्सा आया। मैंने उसे कमरे से जाने का कहा, मगर वो वहीं खड़ी मुझे घूरती रही। मैं डर गई और अपने भाई को आवाज़ें देने लगी। जब तक मेरा भाई कमरे में आया, वो वहाँ से जा चुकी थी। वो मुझसे पूछने लगा कि मैं इतनी डरी हुई क्यों हूँ। मैंने उसे कुछ नहीं बताया। रात को मैंने कोई कहानी नहीं पढ़ी और जल्दी सोने के लिए लेट गई। रात पुरसुकून गुजरी। मैंने इन सब बातों को अपना वहम समझकर भूलने की कोशिश करने लगी। तभी हमारे साथ वो हादसा पेश आया जिसने हमारी रूह फना कर दी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब बाबा मामा को लेकर शहर गए थे। वहाँ उन्हें कोई ज़रूरी काम था और मामा को मार्केट से कुछ सामान भी लाना था। उन लोगों ने शाम को वापस आना था। मामा हमारे लिए खाना बना कर गई थी। उस दिन दोपहर ही से हल्की हल्की बारिश हो रही थी। हम लोग खाना खाने के बाद टीवी देख रहे थे। टीवी पर कोई मैजिक शो चल रहा था। हम लोग इंतहाई अहमाक से उसे देखने में मगन थे। जभी वहाँ पर माया आ गई और हमारे साथ बैठकर टीवी देखने लगी। उसे शो देखते हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसने बताया ये सब मैजिक जो दिखा रहे हैं झूठ और बकवास है। इसी बात पर हमारी बहस शुरू हो गई। मैं और मेरे भाई बाजिद थे कि ये सब हकीकत है, मगर माया मान नहीं रही थी। फिर एकदम ही अचानक उसने हमें पूरी सार नज़रों से देखा और कहा कि अगर हम असल जादू देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें उसके साथ जंगल में जाना होगा। मेरा भाई फ़ौरन तैयार हो गया, मगर मैं उसके साथ जंगल में नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया। वो मायूस सी होकर वहाँ से चली गई। हम लोग ऊपर आ गए। मेरा भाई गेम खेलने लग गया और मैं कहानी पढ़ने में मसरूफ़ हो गई। कहानी पढ़ते पढ़ते न जाने कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। बाहर बिजली की ज़ोरदार कड़कने की आवाज़ से मेरी आंख खुली। कमरे में हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। मैंने उठकर लाइट ऑन की। अभी इतनी शाम नहीं हुई थी, ये असर के बाद का वक्त था। बाहर दोबारा बारिश शुरू हो चुकी थी। बादलों की वजह से हर तरफ तारीकी महसूस हो रही थी। मैंने अपने भाई को आवाज़ें दी, मगर कोई जवाब नहीं आया। मैंने उसके कमरे में जाके देखा, वो वहाँ भी नहीं था। सारा घर खाली पड़ा था, वो कहीं नहीं था। मैं क्वार्टर्स की जानिब भागी माया से पूछने के लिए, मगर क्वार्टर भी खाली था। माया भी कहीं नहीं थी। कहीं वो उसके साथ जंगल में तो नहीं चला गया। ये ख्याल मेरे जहन में आते ही मेरे होश उड़ गए। मैं वापस कमरे में आई और खिड़की से बाहर देखने लगी, मगर मुझे कुछ नजर नहीं आया। मैं खुद जाती हूँ चौकीदार के साथ, मैंने सोचा, और जल्दी से एक नोट लिखकर फ्रिज पर चिपका दिया ताकि अगर मामा और बाबा आए तो पढ़ लें, और खुद चौकीदार के कैबिन की तरफ आ गई। वहाँ का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। चौकीदार के सर से खून बह रहा था। मेरे भाई को माया से खतरा है, बस एक यही बात मेरे दिलो दिमाग में गूंज रही थी। मैंने चौकीदार के कैबिन से टॉर्च लाइट उठाई और घर से बाहर आ गई। बाहर कदम रखते ही बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक ने मेरे उसान खता कर दिए थे। सामने घना जंगल था। मैं फैसला नहीं कर पा रही थी कि किस रास्ते पर जाऊं कि अचानक ही मुझे अपने भाई की आवाज़ सुनाई दी। वो मदद के लिए चिल्ला रहा था। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। काश मैं ना सोती, मैं क्यों सो गई थी। मैंने खुद को बुरी तरह कोसा और हिम्मत कर जंगल में दाखिल हो गई। जैसे जैसे मैं जंगल के अंदर जा रही थी, अंधेरा बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। मैंने टॉर्च लाइट ऑन कर ली थी। दुश्वार गुजार और ऊंचे नीचे रास्तों पर चलते हुए मैं बुरी तरह थक गई थी। खौफ और दहशत से मेरा दिल कांप रहा था। किसी अनहोनी के ख्याल ने मेरी सारी तवानाई निचोड़ कर रख दी थी कि अचानक ही मुझे एक जगह से धुआं उठता हुआ नजर आया। मैं उसी जानिब बढ़ने लगी। चलते चलते रास्ते में मुझे नो गो एरिया के बोर्ड लगे नजर आए, मगर मैं नहीं रुकी और आगे बढ़ती रही। तभी मुझे एक जगह आग जलती हुई नजर आई। मैं जल्दी से दरख्त की आड़ में छुपकर देखने लगी। आग के सामने माया बैठी थी, बाल बिखराए, गले में अजीब सी शक्ल वाली खोपड़ियों की माला डाले। उसकी आंखें बंद थी और माथे के बीच काले रंग से 3 लाइनें खींची हुई थी। उसके हाथ में एक तांबे का प्याला था जिसमें वो हाथ डालकर बाहर निकालती और कोई चीज़ आग पर फेंकती तो आग मजीद भड़क उठती। आग के दूसरी जानिब मेरा भाई एक दरख्त से बंधा हुआ था। उसके मुंह पर टेप लगी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये सब देखकर मेरी रूह कांप गई। मैंने नीचे से झुककर एक छोटा सा पत्थर उठाया और अपने भाई की तरफ उछाल दिया। पत्थर उससे टकराकर नीचे गिर गया। उसने सामने दरख्तों की जानिब देखा। मैंने उसे इशारे से चुप रहने का कहा। मुझे वहाँ देखकर उसकी आंखों में
हैरानी और खुशी उतर आई। मैंने इधर उधर कोई भारी चीज़ तलाश करनी शुरू कर दी जो मैं माया के सर पे मार कर उसे बेहोश कर सकूं और फिर हम दोनों वहाँ से भाग जाते। जल्द ही मेरे हाथ एक दरख्त की टूटी हुई लकड़ी लग गई। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलती हुई माया के पीछे पहुँच गई। वो मुझसे बेखबर अजीब सी ज़ुबान में मंत्र पढ़ने में मसरूफ़ थी। मैंने जैसे ही लकड़ी उसे मारने के लिए हाथ ऊपर किया, मेरा हाथ वहीं रह गया। मैंने पूरा जोर लगाया मगर मेरा हाथ हरकत ही नहीं कर रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो। अचानक ही माया अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और मेरी तरफ मुड़ी। मेरे हाथ से लकड़ी लेकर उसने दूर फेंक दी और एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने गर्म सलाखों से मेरा मुंह दाग दिया हो। तकलीफ़ के मारे मेरी जान निकल गई। फिर उसने मुझे बालों से घसीटा और मेरे भाई के पास ले आई और मुझे भी दरख्त के साथ बांध दिया। उसके बाद वो आग के सामने जा खड़ी हुई और उसने आग में अपना हाथ डाल दिया। खौफ और दहशत से हम दोनों जैसे पत्थर के मुजस्मे में ढल गए थे। वो मेरी ज़िंदगी की सबसे भयानक और तवील रात थी जिसकी सुबह होकर नहीं दे रही थी। बाबा अभी तक हमारी मदद को नहीं पहुँचे थे। मैंने नोट में लिखा था, फिर उन्हें इतनी देर क्यों हो गई थी। आसमान पर तेज़ बिजली कड़की और माया ने अपना हाथ आग से बाहर निकाला। उसके हाथ में एक तेज़ सुर्ख दहकता हुआ खंजर था जिस पर एक गोल दायरा बना हुआ था। वो खंजर लेकर हमारी तरफ बढ़ी। मेरा पूरा जिस्म खौफ से लर्ज़ उठा। मौत मुजस्सम मेरी आंखों के सामने खड़ी थी। मैंने अपने भाई का हाथ पकड़ लिया जो डर और खौफ से कँपा रहा था और अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अचानक ही फायर की आवाज़ आई। बाबा हमें बचाने के लिए आ चुके थे। मेरे मुर्दा वजूद में जैसे किसी ने नई रूह फूंक दी थी। मैंने आंखें खोली। सामने बाबा हाथ में गन लिए खड़े थे और माया को कुछ लोगों ने घेरे में ले लिया था जो बाबा के साथ आए थे। वो उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गए और बाबा हमें लेकर घर आ गए। मैंने तो खुद को संभाल लिया था मगर भाई की हालत बहुत बुरी थी। उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं लेता था। वो हर वक्त नींद बेहोशी की हालत में बुड़बुड़ाता रहता। इस वाक़ये का उसके दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ था। वो लोगों से घबराने लगा था और घर से बाहर निकलना उसने बिल्कुल बंद कर दिया था। काफ़ी अरसे बाद उसकी हालत में सुधार आया। कुछ हफ्तों बाद जब हम इस वाक़ये के हिसार से निकले तो बाबा ने बताया कि माया काला जादू करती थी और कस्बे वालों ने उसे काफ़ी अरसे पहले ही बाहर निकाल दिया था। इसलिए वो जंगल में रहती थी और फिर जब हम यहाँ आए तो वो हमारे घर आकर रहने लगी क्योंकि हम उसकी सच्चाई से अनजान थे। बाबा ने मज़ीद बताया कि माया को किसी ने जेल में गला दबाकर मार दिया है या शायद उसने खुदकुशी कर ली थी। पुलिस इस वाक़ये की छानबीन कर रही थी। माया को एक अलग सेल में बिल्कुल तन्हा रखा गया था। फिर उसके बावजूद उसको किसने कत्ल किया और वो हमें मारकर क्या हासिल करना चाहती थी। अक्सर ये सवाल मेरे जहन में गर्दिश करते रहते हैं जिनका जवाब शायद मुझे कभी ना मिल सके। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और मज़ीद मेरी वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।